Good morning, everyone. Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Myself, Purnima Bharadwaj, and from today I am taking your computer classes. We will start from chapter 1. The chapter name is Operating System and Graphical User. So, first of all, I am telling you the topics that we will discuss in this chapter. Let's see the list of contents or the topics. First is functions of an operating system. Second, what does an operating system do? Third, classification of an operating system. Fourth, the operating environment. Fifth, open source software. And the sixth is what is booting. So all these topics that we will discuss in this chapter. So I'm going to explain this chapter. Let's start with me. An operating system is the primary software that manages all the hardware and other software on a computer. The operating system, also known as an OS, interfaces with the computer's hardware and provides services that applications can use. In this chapter, there is a definition of operating system. An operating system is the primary software that manages all the hardware needs. Operating system basically is a system software that maintain and coordinate all the softwares and hardware devices. When we work on computer system, we use different types of hardware devices and as well as softwares. So जब हम बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सारे हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करके चलता है, कोऑर्डिनेट करता है दोनों के बीच में. ठीक है. इट मीन्स इट इज़ एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है जो जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, all internal and external resources of the computer system and maintain and coordinates hardware devices and all the softwares. Now the next is computer system में operating system का क्या काम है, क्या करता है operating system. ये different type के hardware devices को और softwares को maintain and coordinate करता है. And so we can say operating system provide an interface between the user and computer hardware. As we all know that every time we need to give the commands to the computer. हम सबको पता है कि जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है कंप्यूटर्स को कमांड देना पड़ता है. तो वो जो कमांड है वो किसकी हेल्प से कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आप जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो उसके बीच में जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स हमको रिस्पॉन्स देता है, उन कमांड्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर 6. Nowadays operating system has become very popular as it can be found on several devices running from personal computers to cell phones, particularly the smartphones. For example, almost every smartphone uses newest and old operating system. आज के टाइम में हम सब लोग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो सेलफोन है, स्मार्टफोन है, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं. तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्मार्टफोन में हम यूज़ कर पा रहे हैं. जो क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने सेलफोन में भी यूज़ कर रहे हैं. काफ़ी पॉपुलर और ये जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी जिनमें यूज़ होती है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं. एनी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सम बेसिक टास्क लाइक रिकॉग्नाइजिंग द इनपुट डाटा
from a keyboard, sending output to the display screen, and keeping files and directories of the disk and controlling the peripheral devices like printers. ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली वर्क क्या है, कौन सा टास्क परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इट रिकॉग्नाइजिंग द इनपुट डाटा, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को कीबोर्ड से प्रोवाइड करते हैं वो सारा डाटा जो स्क्रीन पर हमको आउटपुट मिलता है, जो कंप्यूटर हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, वो सारे रिजल्ट्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मेंटेन करके रखना, उनको मैनेज करके रखना और ऑल पेरिफेरल्स को कंट्रोल करके रखने का जो वर्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म अ सिंगल टास्क और ऑपरेशन एज वेल एज अ मल्टीपल टास्क और ऑपरेशन एट एनी टाइम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एट ए टाइम वन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या एट ए टाइम मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र भी होता है और मल्टी यूज़र भी होता है. Then the first topic is functions of an operating system. So we will discuss about the functions of an operating system. There are four main functions of an operating system. The first is hardware management. Operating system का जो main function है that is hardware management. It ensures that necessary hardware is available to the user software as and when required. It means ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है, ये इंश्योर करता है नेसेसरी हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी को. आपके पास वर्क करने के लिए एज अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क करने के लिए नेसेसरी हार्डवेयर अवेलेबल है या नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है. ठीक है, इट मीन्स इट मैनेजेस द हार्डवेयर. हार्डवेयर मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. दूसरा जो मेन फंक्शन है, सेकेंड जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मीन इट इंश्योर द स्मूथ एंड डिले फ्री फ्लो ऑफ डाटा. डाटा जो कीबोर्ड से जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स हमारे पास आता है, इसके बीच में जो फ्लो ऑफ डाटा है, इट मीन्स डाटा किस टाइप से किस फ्लो में प्रोसेसिंग यूनिट तक जा रहा है और प्रोसेसिंग यूनिट से कैसे वो आउटपुट यूनिट तक आ रहा है, वो जो डाटा का फ्लो है उसको भी कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. देन थर्ड इज फाइल मैनेजमेंट. It ensures files that saved in a proper format, utilizing minimum space and available as and when required. It means जो फाइल्स हम स्टोर करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, जो फाइल्स हम क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, उनको जो हम स्टोर करते हैं तो वो प्रॉपर फाइल फॉर्मेट में स्टोर हो रही हैं या नहीं, उनका जो स्पेस है वो मिनिमम स्पेस वो यूज़ करें, एंड जब भी हमें नीड है तब हम उन फाइल को रिट्रीव कर पाए. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, that all that functions are performed by operating system. कौन से? Files are saved in proper format, utilizing minimum space. Files minimum space utilize करें, फाइल proper format में सेव हो, और according to our requirement we can use that files or documents. So that is one of the main function of operating system. एंड द लास्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है. मेमोरी किस लिए होती है कंप्यूटर में? वी ऑल नो दैट ऑल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी में ही हम सारे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं. तो मेमोरी को मैनेज करने का जो टास्क है, जो फंक्शन है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. इट इंश्योर्स दैट मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू एप्लीकेशन व्हेन नीडेड विदाउट कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. इट मीन्स विदाउट एनी कोलाइजन, विदाउट एनी क्लैश, इट मैनेज memory properly for all the applications or files. Now the next is, what does an operating system do? Operating system का क्या रोल है? Operating system का
कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, क्यों नीड है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. An operating system is the core set of software on a device that keeps everything together. Operating system communicate with the device's hardware. Operating system क्या है? Is the core set of software. It means जिसे कहते हैं ना कि elementary software, basic software. Basic in the sense कि जिसके बिना कंप्यूटर को हम यूज़ ही नहीं कर सकते. वी कांट डू एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बेसिक सॉफ्टवेयर है, ऐसा एलिमिनेटरी सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते. ऑन अ डिवाइस दैट कीप्स एवरीथिंग टुगेदर, जो क्या करता है सारी डिवाइसेस को एक साथ, सारी डिवाइसेस को कोऑर्डिनेशन में लेके चलता है, एक साथ इकट्ठा करके रखता है, बाइंड करके रखता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट करता है. दे हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड माउस टू द वाईफाई, रेडियो, स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्प्ले. ये क्या करता है? दे हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. ये क्या करते हैं? कीबोर्ड एंड माउस से ये हर एक चीज़ को हैंडल करता है. बिकॉज कीबोर्ड और माउस जो इनपुट डिवाइसेस हैं दैट वी कैन यूज़ फॉर गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. ईच एंड एवरी टाइम वी कैन यूज़ कीबोर्ड एंड माउस टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. इन अदर वर्ड्स, एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करके चलता है. इट मीन जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही यूज़ होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस हैं. तो जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सबको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डिवाइस ड्राइवर्स रिटन बाय हार्डवेयर कंट्रोल्स टू कम्युनिकेट विद देयर डिवाइसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो हार्डवेयर क्रिएटर्स ने जो डिवाइस ड्राइवर क्रिएट किए हैं, उन डिवाइस ड्राइवर्स को के साथ भी कम्युनिकेट करता है. आपने देखा होगा जब भी कोई न्यू हार्डवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उन डिवाइस ड्राइवर के साथ भी communicate करता है. Operating system also include a lot of software things like common system services, libraries and application programming interfaces as developers can use to write programs that run on the operating system. Operating system जो है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम सिट्स इन बिटवीन द एप्लीकेशन यू रन एंड द हार्डवेयर. जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन हो रहा है, और जो हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो as a mediator work करता है. Using the hardware devices as the interface, the two. It means user और computer hardware के बीच में interface का जो medium है, that is called operating system. For example, when an application wants to print something, it hands that task off to the operating system. The operating system sends the instruction to the printer using the printer drivers to send the correct signals. And the application that's preparing doesn't have to care about what printer you have or understand how it works. It means कोई भी एप्लीकेशन जब प्रिंट हो रही है तो इसमें पूरा रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. इट मीन्स प्रिंटर ड्राइवर्स यूज़ करना, करेक्ट सिग्नल सेंड करना, और एप्लीकेशन जो प्रिंट हो रही है दैट डजंट हैव टू केयर अबाउट कैसे प्रिंटर वर्क कर रहा है, कौन सा प्रिंटर यूज़ हो रहा है. ये सारा जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द डिटेल्स. ये सारा जो डिटेल्स है
प्रिंटिंग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. दैट एप्लीकेशन डजंट केयर अबाउट दैट. Now the next is classification of an operating system. Classification of an operating system. Operating system को classify कितने parts में किया गया है वो हम इस topic में देखते हैं. The first is multiprocessing. Multiprocessing in the sense this type of an operating system supports more than one CPU at a time, increasing the processing speed. इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, मोर देन वन CPU यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग स्पीड. प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस मोर देन वन CPUs. दैट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग. एंड द सेकेंड इज multitasking. It supports simultaneous execution of multiple tasks. Simultaneous means एक साथ. It supports simultaneous execution of multiple tasks. It means बहुत सारे jobs का, बहुत सारे tasks का simultaneously execute होना. इसे क्या कहते हैं, multitasking. For example, Unix, Linux, Windows 2000. All these operating systems are the examples of multitasking operating system. कौन कौन से हैं multitasking operating system के example? Unix, Linux and Windows 2000. And the third is multi-user. Multi-user operating system क्या होता है? Multi-user operating system such as Unix, Windows NT, Windows 2000 can support more than one users to process a job at a same functions of a time. It means multi-user operating system basically ऐसा operating system है जो more than one user को at a time job perform करने के लिए allow करता है. Multi-user in the sense more than one user can perform a job simultaneously. एक से ज़्यादा user जो है वो एक साथ job को simultaneously perform कर सकते हैं. The example of multi-user operating systems are Unix, Windows NT, Windows 2000. All these are the examples of multi-user operating system. And next is multi-threading. The ability of an operating system to execute different parts of a program called threads. किसी प्रोग्राम के different parts को simultaneously execute करने की जो ability है that is called threading. तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो simultaneously किसी प्रोग्राम के different parts को execute करते हैं that is called multi-threading operating system. Next is real time. They perform processes based on the real-time input. For example, computers that are used in industries, robotics, online editing and broadcast, etc. It means जो कंप्यूटर इन सारी फील्ड में यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ऑनलाइन एडिटिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो किस टाइप के कंप्यूटर्स हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं. मीन्स जैसे ही डाटा इनपुट होता है इमीडिएटली वो प्रोसेस होता है. इट मीन्स वहाँ इमीडिएट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. इन सारी फील्ड में इमीडिएट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टी यूजर बाय डिवाइडिंग द CPU टाइम into slots and defining time slot slice quantum in the range of 10 to 100 milliseconds for each user per job. टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होती है उसमें क्या होता है, CPU का जो टाइम स्लॉट है वो डिफरेंट यूज़र्स के बीच में डिवाइड हो जाता है. टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट यूज़र्स के बीच में टाइम डिवाइड करके डाटा को प्रोसेस करते हैं. मीन्स जो प्रोसेसिंग टाइम है वो CPU के बीच में यूज़र्स को स्लॉट डिवाइड करके वो प्रोसेस करते हैं. एंड द लास्ट इज बैच प्रोसेसिंग. बैच इन द सेंस ग्रुप, जो जिसमें ग्रुप बनाकर प्रोसेसिंग होती है. इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, ग्रुपिंग हो जाती है, बैच बन जाता है. इन बैच प्रोसेसिंग ऑल द जॉब टू बी
process are accepted as a group called a batch. यानी जो भी जॉब्स परफॉर्म होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म होता है, प्रोसेसिंग जो परफॉर्म होती है वो कैसे होती है? बैच बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, एंड प्रोसेस टुगेदर एट अ प्री डिफाइंड टाइम स्लॉट. और प्री डिफाइंड टाइम स्लॉट में ऑलरेडी जो डिसाइडेड टाइम स्लॉट है उसमें वो प्रोसेसिंग की जाती है. फॉर एग्जाम्पल डाटा ट्रांसफर एंड डाटा अपडेटिंग इन बैंक्स. ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर यूज़ होते हैं? जैसे बैंक में डाटा अपडेट होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में होता है. इसलिए एक बैच मतलब एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप बनाकर या बैच बनाकर हम कह सकते हैं, इस तरह की प्रोसेसिंग होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग. इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. So students, we have discussed the 3 topics in this chapters. Now the remaining 3 topics we will discuss in the next class. Thank you all. Have a nice day.